بلاول بھٹو سے بلوچستان اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ کی ملاقات۔ وزرائے اعلیٰ نے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی اور انتظامی مسائل سے آگاہ کیا۔ سرفراز بگٹی نے بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال، مراد علی شاہ کی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت۔ معاشی استحکام کا فائدہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ قوی امید ہے کہ مہنگائی میں مزید کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں معیشت کی بہتری، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ عوام کو سستے نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ لاہور میں 1 کلو چینی 170 روپے کی ہو گئی۔ کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے شوگر ملز مالکان نے کارٹیل بنا کر مصنوعی قلت پیدا کی، اسی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ کراچی میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، 160 سے 170 روپے فی کلو میں فروخت۔ اتنی مہنگائی میں 5-5 ہزار روپے دینا مذاق ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے رمضان پیکج پر تنقید۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ذاتی تشہیر پر اربوں پھونکنے سے بہتر تھا اس عوام کو ریلیف دیتے جس کے نام پر قرض لیتے ہیں۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حکومت کارکنوں کو اشتعال دلانا چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اجالہ جن میں طبی معائنہ مکمل، پیمز اسپتال کی 4 رکنی کمیٹی نے جن میں چیک اپ کیا۔ معیشت مضبوط ہو رہی ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کل قوم کے سامنے 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کردار قابل ستائش ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست ایکسپوز ہو گئی، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ ایسے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ملتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا ہمارے اپنے لوگ ملک کے خلاف امریکہ اور یورپ میں مہم چلا کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، حکومتی کاوشوں سے مہنگائی کم ہوئی۔ سحر و افطار کے وقت گیس کی بندش اور پریشر میں کمی، شہری اذیت میں مبتلا۔ خواتین کو آج بھی افطار کی تیاری میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے گیس بندش کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ رمضان المبارک میں عوام کو پریشان نہ کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لکی مروت میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اشیاء خورونوش کے نرخ چیک کرنے کے لیے جانے والے ایڈیشنل اے سی اور ٹھیلے والوں میں گرما گرمی اور تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ریڑھی والوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو دھکے دی اور گریبان سے پکڑ لیا۔ پولیس اہلکاروں نے مشکل سے اے سی کو بچایا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا تعارفی سیشن مکمل۔ آئی ایم ایف کمیشن $1 ارب قرض سے پہلے معاشی جائزہ لے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے اتھارٹی پراپرٹی کی غلط مالیت ظاہر کرنے پر سزا اور جرمانہ کر سکے گی۔ اتھارٹی کو 3 سال قید کا اختیار مل سکتا ہے۔ اتھارٹی رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکے گی۔ غلط معلومات دینے پر 2 سے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا سکے گی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت۔ مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ ملزم کے مطابق اس پر اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ملزم کے بیان پر تفتیشی افسر کی اعترافی بیان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ملزم شہراز نے بتایا وہ مصطفیٰ کے قتل کا واحد چشمدید گواہ ہے۔ واقعے کے وقت وہ بے بس اور لاچار تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ بورڈ بیسن پر شاہ زین مری کا شہری پر تشدد کا واقعہ، معاملے پر فریقین میں صلح ہو گئے، راضی نامہ بھی کر لیا۔ ذرائع نے بتایا مدعی مقدمہ برکت علی سومرو نے راضی نامہ کیا، فریقین کے مابین راضی نامے کی کاپی بھی سامنے آ گئی۔
साउथ पुलिस का कहना है मुलजिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुताल्लिका अदालत में जमा करवाया जाएगा। दोनों फरीकैन के दरमियान राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला, ताहाल राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख रखा है। भारतीय जासूस कलभूषण यादव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कलभूषण की गिरफ्तारी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी रॉ के घिनौने अज़ाइम बेनकाब हुए। भारतीय एजेंट कलभूषण यादव की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कलभूषण की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में सबसे पहले ARY न्यूज ने दी थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने का एक और सबूत। गुलाम खान किले में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर का ताल्लुक अफगान सूबे मैदान वर्दक से है। 28 फरवरी को फोर्सेज ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था। यूरोपीय रहनुमाओं का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। अब मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारहियत को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि रूस पर इक्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। रूस को जंग खत्म करने के लिए मुमकिना डील का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों ने अमन प्लान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज हो चुका। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अहदाफ पूरे नहीं कर लिए जाते। इस वक्त यूक्रेन के साथ कोई मुनज़्ज़म या जारी अमन मंसूबा हमारा एजेंडा नहीं। यूक्रेन समिट पर बात करते हुए कहा कुछ मुल्कों का ग्रुप अब भी जंग चाहता है। ये मुल्क यूक्रेन की जंग जारी रखने में हिमायत कर रहे हैं और उन्हें फौजी कार्रवाइयों के लिए रसद फराहम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी क्रिप्टो रिजर्व का ऐलान कर दिया। 5 डिजिटल असासों को रिजर्व में शामिल करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बिटकॉइन, एथीरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो डिजिटल असासों का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अमरीका दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत है। क्या पुलिस की तफ्तीश सुस्त और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? जस्टिस हसन असहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, मसले की जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा क्या इंसदादे दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए ATC ने मुल्जिमान को नोटिस भी नहीं किया था। हवालगी की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरी अली मोहम्मद को मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अली मोहम्मद के वालिद की दरखास्त पर समाअत की। वकील शेर अफजल मरवत ने अली मोहम्मद का 164 का बयान अदालत में पेश किया। DSP लीगल ने कहा कि बयान की कॉपी ताहाल हमें नहीं मिल सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि IG को बताएं कॉपी मौसूल होने पर पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारियां करें। आइंदा समाअत तक मुकदमा हो जाना चाहिए। फिर देखते हैं IG इस्लामाबाद रिपोर्ट दें उन्होंने क्या कार्रवाई की। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल तलबा के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। मरियम नवाज गंडापुर की तरह अवामी फलाह का सोचें।
पख्तूनख्वा की कारकर्दगी तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने 625 मंसूबों की रिपोर्ट जारी की। मरियम नवाज ने 125 तस्वीरें शाया करवा दी। वजीर इत्तलात पंजाब मुस्बा बुखारी का रद्द अमल, कहा KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब अवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के क़िला अब्दुल्ला, पशीन, हरनाई, लौरालई में भी बादल बरसे। कोटली, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। स्वात में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। गलियात में बर्फबारी। स्कूल 3 दिन के लिए बंद। लाहौर में खातून ने सौतन को सर पर बेलन मारकर कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके छत पर छुपा दी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम सादिया ने झगड़े के दौरान सौतन तैयबा के सर पर बेलन मारा था। 5 दिन बाद ताफुन फैला तो पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सादिया को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर, उर्दन और मिस्र की इसराइल की जानिब से इमदाद और सामान के गजा जाने पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम को जंगबंदी माहिदे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास का कहना है जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल शुरू किया जाए, पहले मरहले में कोई तोसी नहीं होगी। हमास तर्जुमान का कहना है यरगमालियों को माहिदे के तहत ही मरहलावार रिहा किया जाएगा। जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई और तमाम फलस्तीनियों की आज़ादी, इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। जर्मनी के शहर मनहीम में तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़ तोड़ी। एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद कुचल कर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि वाकई के वक्त शहर के मरकजी चौक पर कार्निवल परेड के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमलावर कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई है। कार्निवल पर हमलों की धमकियों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 4 टीमों के दरमियान टाइटल की जंग। पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में होगा। कल के मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा। भारत की जीत की सूरत में फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तगड़ा हरीफ रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ ने कहा कि जानते हैं भारत को ग्राउंड की सपोर्ट होगी, लेकिन हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ी तब्दीली कर दी गई। ओपनर मैथ्यू इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए। कूपर कराली को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। टीम की परफॉर्मेंस पर सबको ही दुख है, अब इस पर बात करना छोड़ दें। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसा होना ही था, ये शिकस्त अचानक नहीं आई। नौजवान लड़के आते ही नहीं जीतेंगे। 2026 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बनाना होगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनेंगे मारूफ अदाकार नबील जफर। मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे एंकर हारून रफीक। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे आदिल मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। पाकिस्तान का नंबर 1 गेम शो जीतो पाकिस्तान आया और छा गया। जीतो पाकिस्तान लीग में रमजान के पहले प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपए के इनामात बांट दिए गए। खुशनसीबों को मिली 1300 सीसी गाड़ी, नकद इनामात, बेशुमार मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए के होम अप्लायंसेस। जीतो पाकिस्तान में इनामात की बरसात पूरे रमजान जारी रहेगी। और जापान में बहार के रंग चेरी ब्लॉसम के संग कावाजों के पार्क में दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से ढक गए। दिलकश नजारे, दिल फरेब महक। सयाहों ने हसीन मनाजिर को कैमरों में महफूज करने पार्क्स का रुख कर लिया।